चले जी, पेज नंबर 76 आ जाए यार, क्या मसला है? सब आ चुके हैं भाई? पेज वॉल्यूम 2 पेज नंबर 76, ISA 530 audit sampling. It deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing TOCs and TODs, and evaluating the results from the sample TODs. हम पढ़ रहे TOCs नहीं पढ़ रहे. Auditor's responsibility to design and perform audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. अगर आपने SSGC में सिर्फ रैंडम नंबर जनरेटर अप्लाई कर दिया होता या सिस्टमैटिक कर दिया होता तो ऑल दो सैम्पलिंग करी आपने, लेकिन वो आपको सफिशिएंट appropriate audit evidence provide नहीं करना. Objective to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. Audit sampling कुछ definition से पढ़ लेते हैं. The application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevant such that all the sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population. What is population? The entire set of data from which a sample is and about which the auditor wishes to draw conclusion. तीसरा हमारे पास है सैम्पलिंग रिस्क, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं करा है. चौथा एनोमली मिस स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस नहीं किया. सैम्पलिंग यूनिट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं. द इंडिविजुअल आइटम कंस्टिट्यूटिंग अ पॉपुलेशन. द सैम्पलिंग यूनिट माइट बी फिजिकल आइटम और ऑफ ऑडिट एविडेंस. नहीं सॉरी, बस इतना है. द सैम्पलिंग यूनिट्स माइट बी फिजिकल आइटम्स. फॉर एग्जांपल क्या मतलब इसका? पीपी के लिए अभी हमने पढ़ा ना, सैम्पलिंग यूनिट्स माइट बी द फिजिकल आइटम्स. अगली चीज statistical sampling, an approach to sampling that has the following characteristics: random selection of the sample items and the use of probability theory to evaluate the sample results, including the measurement of sampling risk. Non-statistical sampling, a sampling approach that does not have the characteristic 1 and 2 is considered as a non-statistical sampling, also known as judgment sampling. Is any sampling technique not based on the probability theory. Instead, it is based on the judgmental opinion by the auditor. Stratification, the process of dividing a population into subpopulation, each of which is a group of sampling units which have similar characteristics. It is often monetary value, लेकिन monetary value के अलावा भी हो सकता है. Let's say region wise हो सकता है, country wise हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है. स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत से टाइप्स हो सकती है. टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, अ मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन एन appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population. इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके थे. कब पढ़ चुके थे? आइजा. एंड अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, कितनी अमाउंट रखनी है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी कम रखनी है. अगले पेज पे आपके पास आ रहा है सैंपल डिजाइन, रिक्वायरमेंट सैंपल डिजाइन. मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहा हूं. सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग. सैंपल डिजाइन, सैंपलिंग अप्रोच टू बी यूज्ड, स्टैटिस्टिकल और non-statistical purpose and characteristic of the population from which the sample is drawn and what constitute misstatement or deviation. यहाँ तो sample size लिखा हुआ है. अगले पेज पे आपके पास एक हैंडआउट आता है जिसमें लिखा हुआ है sample size. The auditor shall determine a sample size sufficient to reduce the sampling risk to an acceptable low level. The level of sampling risk that the auditor is willing to accept affect the sample size required. The lower the risk the auditor is willing to accept, the greater the sample size will
needs to be, it depends on certain factors. Explanation मैं आपके साथ रीड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स और इफेक्ट ऑन सैंपल साइज रीड करूंगा. एक्सप्लेनेशन आपने खुद रीड करनी है. एंड इंक्रीज इन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इफेक्ट ऑन सैंपल साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. And increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion, तो मेरे sample size में क्या impact आएगा, decrease हो जाएगा. And increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable misstatement is not exceeded by, तो इससे मेरा effect on sample size क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. And increase in tolerable misstatement, इससे क्या impact आएगा प्यारे बच्चों, decrease हो जाएगा. And increase in the amount of misstatement the auditor expect to find in the population, तो मेरे sample size में क्या impact आएगा, increase आएगा. एक्सपेंशन में यही सारी चीजें वापस से थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन की और बताया है कि इससे इंक्रीज कर जाएगा, इससे डिक्रीज कर जाएगा. ये आपने खुद पढ़ना और इसको मार्क कर लें, ये पेपर में आएगा, इस अटेम्प्ट में लाजमी आएगा. आई कैप ने आज तक सैंपल साइज के ऊपर कभी अपनी हिस्ट्री में सवाल नहीं पूछा है, इस अटेम्प्ट में वो लाजमी पूछेगा सैंपल साइज के ऊपर. अगले पेज में सैंपल साइज टीओसीज आ रहा है. ये सैंपल साइज टीओसीज हमने अभी नहीं पढ़े. इसके नीचे स्टडी टेक्स्ट का एक हैंडआउट आ रहा है. स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इन दोनों के फायदे बताए गए और नुकसानात बताए गए. मैं ये सिर्फ आपके साथ एक बार क्विकली इसको क्या कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ. स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की एक चीज याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसकी कॉस्ट भी होती है और इसमें आपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स भी देनी होती है. तो ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे. कुछ फायदे नुकसान लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं. The benefit of statistical sampling techniques are as follows. Statistical sampling provides an objective, mathematically precise basis for the sampling process. The required sample size can be calculated precisely. There may be circumstances where statistical sampling is the only means of auditing efficiently. For example, in the case of very large population of item, अगर 30 लाख कस्टमर है, मैं एक एक कस्टमर को बैठ के थोड़ी देखूंगा कि यार मैं इसको सेलेक्ट करूं या ना करूं, सेलेक्ट करूं या ना करूं. तो यहाँ तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज दी ओनली ऑप्शन. और ये बड़ा प्रिसाइसली और स्टैटिस्टिकली सैंपल्स को सेलेक्ट करवा देते हैं. एक और फायदा आप चाहें तो लिख सकते हैं, इससे मैं अपने रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन में, जो वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल, इसका मतलब ये है कि इसके रिजल्ट को आप पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. The disadvantage of statistical sampling techniques are as follows. A degree of training and technical expertise is required if the auditor are to use a statistical sampling technique effectively. This requires an investment in the necessary training. Sample size may be larger than the under a judgmental approach, thus increasing the time involved in the audit. Some audit take the view that it is preferable to rely on the skills, experience, and judgment of the auditor rather than on the mathematical / statistical. ये चौथा पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अक्सर ऐसा होता है, आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे होते हो और पार्टनर है ना एक जगह पे हाथ रखेगा, यार यहाँ मुझे मसला लग रहा है, या जब वो ट्रांजैक्शंस उसके सामने जेल पूरा आ रहा होगा तो जूनियर ने या सीनियर ने तो कोई 4-5 ट्रांजैक्शन सिस्टम ने बोली होंगी, वो वेरीफाई कर ली होगी, उसके अलावा उसने बकिया 5000 ट्रांजैक्शंस को देखी ही नहीं होगी. और जब मैनेजर या पार्टनर रिव्यू कर रहा होता है तो वो 5000 ट्रांजैक्शन से गो थ्रू करता है, वो कहता है यार ये ट्रांजैक्शन तो थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसको देखा है तुमने, वो मेरे सैंपल में नहीं आया. तो यहाँ जो ऑडिटर की अपनी जजमेंट होती है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में, वो क्या हो जाती है, वो खत्म. जो सिस्टम ने आपको 4 बोले वही 4 आपने करे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर पूरी पॉपुलेशन को गो थ्रू करता तो शायद वो एक ऐसी सैंपलिंग यूनिट को सेलेक्ट कर लेता जहां पे एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा मौजूद होते हैं. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये पॉइंट जो है हमारा फोर्थ, ये इसको एक्सप्लेन करता है, इसको भी मार्क कर ले, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस्ड के लिहाज से. अगली चीज, selection of items. The auditor shall select the items for the sample in such a way that each sampling unit in the problem has a chance of selection. With statistical sampling, sample items are selected in a way that each sampling unit has a known probability of being selected. With non-statistical sampling, judgment is used to select the sample.
because the purpose of sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. It is important that the auditor select a representative sampling so that biasness is avoided by choosing sample items which have characteristic typical of the population. इस वर्ड को समझने की कोशिश करेगा, वर्ड क्या है। ये जो ऑडिटर 2 नंबरी करते हैं ना, इस चीज को खत्म करने के लिए उसने क्या करा समझे। एक कंपनी की 10,000 ट्रांजैक्शन और मैं एज्यूम करता हूं मेरे सैंपल साइज कितने हैं 5 और 10,000 में से सिर्फ 5 ही ठीक है, बाकी 9,995 गलत है। आप कोई भी मेथड कर लें, ये आपको तो लाजमी मिस स्टेटमेंट आएगी। जब मिस स्टेटमेंट आएगी तब आप फाइल तो क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको तो या तो ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ेगी। दैट्स आपने ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करनी। अब मैं क्या करूंगा, मैं हैव प्रेजेंट करूंगा और वही 5 सेलेक्ट कर लूंगा जो सही है, और मैं कहूंगा ये 5 सही है तो बकिया भी नहीं। ये नहीं कह सकता। क्यों? आपने कौन सी सैंपलिंग करी है? आपने हैव प्रेजेंट करी है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग नहीं करी। तो इस बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि बकिया भी ठीक होंगे। तभी वो कहता है कि आपने कौन सी सैंपलिंग करनी है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी है, बिकॉज हैव प्रेजेंट इन नॉन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को आप पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कुछ मेथड आ रहा है? पांच मेथड है, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से रीड करें। अगले पेज पे है। स्ट्रेटिफिकेशन की हेडिंग दिख रही होगी, जल्दी से इसको रीड कर लें।